Dear students, I feel so happy interacting with you after a gap of couple of weeks, rather a month. I have not seen you, and our classrooms are empty. The campus without you is looking barren. We need students here, but now the situation we have to bear with it, and nobody had expected this situation. This has come and we have to face. It happened so sudden that whole of our academic calendar got disturbed. It was month of February and we were in the full swing of our academic activities. We had just finished our study tour and we were into our very important programs. After that, in our academic calendar, we had number of things to happen. The beautiful part was about the Institute Day, and also the farewell to our second year students. We missed that. And then of course your exam and your fieldwork evaluation and number of other academic activities. We have to stop the classroom, teaching and all the academic activities. However, we have come out with the e-learning facilities. Some videos are being uploaded, the resource material is being uploaded so that you have uninterrupted learning process going on. Now, I'm aware that you all have number of questions. You have anxiety to know what is going to happen with our exam. What is going to happen with our viva? What is going to happen with our research? What is going to happen with our next admission? And when is our next academic year begins? What about our internship? What about our placement? And what about our job placement? The most important question. Now these are the number of questions that you must be having in your mind. Now answering to this question depends on the system, the government orders, the circulars that we receive from university, the guidelines that we receive from UGC, and also the guidelines that we received from our own university. First of all, we have recently received announcement and the government resolution with regard to exam of students who are in their second year, who are in their first year, and who are appearing for their final year exam. Now this circular is a generic circular addressed to all the vice chancellors. Now the university will issue another circular to the respective colleges and the institutes, giving the clear-cut idea that what is going to happen. Now as per this government resolution and the announcement by the Minister of Higher and Technical Education, the exams for first year students are not going to be held. The exams for second year students are going to be held in the month of July 1st to 30th, in between that. But however, 31st July, from 1st July to 31st July exam might happen. लेकिन इसमें ये जो समय दिया है, इसमें कब होगा, कैसे शेड्यूल होगा, इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है. 20 जून के करीब करीब यूनिवर्सिटी कई सारे शेड्यूल अनाउंस करेगा, ऐसे एक मैसेज है. यूनिवर्सिटी कल परसों में और भी मीटिंग करने वाले हैं और उसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे क्लियर, और उसके बाद ही हम कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि कौन सी एग्ज़ाम कब होगी. लेकिन ये क्लियर है अभी तक कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम नहीं है. इंटरनल एग्ज़ाम और पास्ट परफॉर्मेंस जो भी होगा उसके आधार पर उनको अगले साल के लिए एडमिशन दिया जाएगा, अगले क्लास के लिए. लेकिन इसमें और एक चीज़ है कि ये सारे करते समय अगर कोई स्टूडेंट्स समाधानी नहीं है, कि उनको लगेगा कि मुझे कम मार्क्स से पहले मुझे तो इम्प्रूव करना है, तो उनके लिए भी एग्ज़ाम का मौका दिया जाएगा कि वो एग्ज़ाम देके इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको जो भी ग्रेड मिले हैं तो वो भी करेंगे. ग्रेड किस तरह से दिए जाएंगे, उसका सिस्टम क्या होगा, उसके क्या सारे
क्राइटेरियाज होंगे, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी यूनिवर्सिटी देगी और तभी द मोमेंट वी रिसीव फ्रॉम यूनिवर्सिटी वी विल सर्कुलेट इट टू ऑल ऑफ यू। तो तब तक अभी मैसेज ये है कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम जो होगा सेकेंड ईयर के लिए वो जुलाई 1 to 31 जुलाई के दौरान होगा। वो कैसा होगा, क्या नेचर होगा, इसके बारे में डिटेल्स आने के बाद ही बताया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंटर्नशिप के बारे में यूजीसी ने सजेस्टिव गाइडलाइंस दिया है कि आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप मतलब कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमें कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। खास करके सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर लोगों के साथ काम करना होता है, जहाँ पर लोगों के साथ फेस टू फेस हम काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ऑनलाइन इंटर्नशिप कैसे होगा। देयर आर वेज टू डू इट, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड विल कम आउट। मीनवाइल यूनिवर्सिटी के भी इसके बारे में गाइडलाइंस आएंगे, तुरंत हम आपको बता देंगे एंड देन उसके हिसाब से जो भी है तय किया जाएगा। वाइवा के बारे में अभी तक ये गाइडलाइंस है कि वाइवा कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो जैसे स्काइप है, जूम है, गूगल हैंगआउट है या व्हाट्सएप है, इसके द्वारा जैसे भी पैनल बनाए जाएंगे और वाइवा कंडक्ट हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दिया और बोला कि ये करना है तो अकॉर्डिंगली विल डू इट। रिसर्च के बारे में भी आपने रिसर्च सबमिट किया है, उसके आधार पर उसका जांच होगा और उसके नंबर आपको दिए जाएंगे। एक अच्छी खबर यह है कि हमारे लिए कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर रिसर्च, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। उनके असाइनमेंट्स ऑफिस में आ चुके हैं। कुछ लोगों के इश्यूज़ है तो ऑफिस एकेडमिक सेक्शन उनको पर्सनल कॉल करके बता रहे हैं और उस हिसाब से आपको कंप्लाई करके उसको फॉलो करना है। जो भी मैसेज आएगा उस हिसाब से, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगर आपको मार्क्स देने हैं तो आपके जो भी असाइनमेंट दिए हैं अभी तक, दोनों तरह के असाइनमेंट इन लीव ऑफ इंटरनल एग्ज़ाम और टीचरों ने जो असाइनमेंट आपको क्लासरूम में दिए हैं वो दोनों भी सबमिट करना अनिवार्य है और वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ऑलरेडी आपको बता दिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने, मोर और लेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सबमिट किया है। ऑफिस ने वो रिसीव किया है, वो जांचने के लिए रिस्पेक्टिव टीचर और एग्जामिनर के पास जा रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको नंबर मिल जाएंगे। अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या होगा हमारे करियर के बारे में। अभी इंटर्नशिप के बारे में खास करके सेकेंड ईयर के मन में ये सवाल होगा और उसके लिए लेट मी रिमाइंड यू, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि समाज कार्य व्यवसाय ये मानवीय सेवा का व्यवसाय है, आप सब जानते हैं। सोशल वर्क इज़ अ ह्यूमन सर्विस प्रोफेशन एंड विद दिस पैंडेमिक द वर्ल्ड इज़ बीइंग अफेक्टेड एंड लेट मी टेल यू कि समाज कार्यकर्ताओं के लिए ये पैंडेमिक के साथ लोगों की सेवा करने की, मानवता की सेवा करने की कई सारी अपॉर्चुनिटी इसके साथ आई हैं। इसमें कई सारी चीज़ें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन के बाद या ये स्थिति जब भी आगे बढ़ेगी तो उसमें कई सारे सोशल वर्कर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सरकारी, गैर सरकारी संगठन, सभी जगह पर आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर स्थिति ऐसी देखेंगे कि देयर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज रिक्वायरमेंट, तो इसलिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास काफ़ी सारे मौके आने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये जो कोविड-19 डिसीज़ है नया, ये बीमारी कई सारे चैलेंजेस लेके आया है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो सभी व्यावसायिक के लिए चैलेंजेस है, मेडिकल के लिए चैलेंजेस है, उसी तरह के सोशल वर्कर्स के लिए भी कई सारे चैलेंजेस लेके आए हैं। अब इसमें द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द लार्जेस्ट क्राइसिस सिचुएशन ड्यू टू दिस कोविड-19 और आप जिस तरह से न्यूज़ में देख रहे होंगे, जिस तरह से स्थिति हो गई, पूरा ह्यूमन लाइफ इज़ बीइंग डिस्टर्ब एंड डिसरप्टेड, एवरीथिंग हैज़ कोलैप्स्ड, नंबर ऑफ थिंग्स। The government is
trying to support and with its whatever system they are trying to help its citizens. But then if you see the overall situation, the social life is disturbed. ये पक्का है. और ये सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से जो लोग अक्सर एक्टिव रहते वो लोग अचानक इनएक्टिव होने की वजह से, घर में बैठे रहने की वजह से कई सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं. डर बढ़ गया है लोगों के अंदर, डर, भय, एंजाइटी, चिंता बहुत हो रही लोगों को. और ये सारे डर के मामले मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस में परावर्तित हो सकते हैं. तो ये देयर इज अ अर्जेंट कॉल फॉर ऑल ऑफ अस to address these issues, to take care of this emotional balancing of people. इसके लिए समाज कार्यकर्ता ने कुछ करना चाहिए. ये एक बहुत ज़रूरी आह्वान है. इसके अलावा साइको सोशल सपोर्ट लोगों को इसके मामले में बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसमें कई सारे इश्यूज वैयक्तिक लेवल पे व्यक्ति को हैं. और दूसरी बात यह कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, जिस तरह से HIV, TB, लेप्रेसी ये बीमारियां आई थी, उसके साथ कई सारे गलत धारणाएं जुड़ी हुई होती है. ये कैसे होता है, ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है. गलत धारणाएं, गलत इन्फॉर्मेशन और अफवाहें ये फैलती हैं, और जिसकी वजह से समाज में केओस की स्थिति निर्माण होती है. लोग एक दूसरे से डरना शुरू कर देते हैं. एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. सोशल डिस्टेंसिंग इज फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन, बिटवीन टू पर्सन. द एडिक्वेट डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन टू पर्सन्स. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि सामाजिक दुरावा निर्माण करना. दुरावा यानी एक दूसरे के साथ बात ना करना, एक दूसरे के साथ मदद न करना, ये उसका मायना नहीं है. ये समझ लेना चाहिए. सेफ डिस्टेंस आवश्यक है, सुरक्षित अंतर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरों को समझना नहीं या दूसरों को वो बहुत ज़रूरी है. तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जिस तरह से HIV के साथ कई सारे लोग स्टिग्मेटाइज्ड हो गए, कई सारी कम्युनिटी स्टिग्मेटाइज्ड हो गए, हाई रिस्क ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए. तो हाई रिस्क ग्रुप दिखा तो समझ लेना कि ये कोरोना, ये HIV वाला पेशेंट है. उसी तरह से इस वायरस को लेके कई सारी गलत धारणाएं आ रही है, और जिसकी वजह से लोगों के साथ भेदभाव होना बहुत शुरू हो गया है. कम्युनिटीज आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड, इवन किसी को क्वारंटाइन किया गया तो भी उसके तरफ लोग बिल्कुल सस्पिशियस होके देख रहे कि क्या इनको है. ऐसी स्थिति में समाज कार्यकर्ताओं के सामने बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से अफवाहों को सही इंफॉर्मेशन में बदल दे, किस तरह से लोगों का ये भय, डर, चिंता कम करे. पीपल आर now getting the out of home and also out of job. तो उससे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उससे गरीबी के और भूखमरी के केसेस और बढ़ने वाले हैं. तो ऐसी स्थिति में समाज कार्यकर्ता क्या करेगा? तो इसके बारे में और बड़ा कॉल है हमारे लिए कि अर्जेंट कॉल टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ इश्यूज बाय द सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, कि हमें सामने आना चाहिए ताकि ये जो हॉस्टिलिटी, केओस और सोशल डिस्ट्रप्शन है इसको रोका जाए, कम किया जाए और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाए. व्हेनेवर देयर इज़ वायरस, चाहे वो TB का हो, चाहे वो लेप्रेसी का हो या कोरोना का, कोविड का हो, वायरस, विषाणु जब भी आता है वो नष्ट नहीं होता है. उसके साथ रहने के लिए तरीके बताए जाते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द वेज टू लिव विथ इट. वी हैव टू एडजस्ट आवर लाइफ अकॉर्डिंगली.
1-2 दिन में इसका वैक्सीन नहीं है उपलब्ध। और अभी बताया जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द बेस्ट। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सही मायने में हमें समझना चाहिए कि ये सामाजिक दूरी नहीं है, ये शारीरिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। इसके मामले में खास करके अभी समाज कार्यकर्ताओं को इस अफवाहों को कम करने के लिए और ये सारी चीज़ों के ऊपर बाहर आके, यानी घर से बाहर ना निकलते हुए खुल के बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी माध्यम हमारे पास उपलब्ध है उसके द्वारा इसके ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। और ये जो नया वायरस आया है इसके लिए समाज को किस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे। केरला में बड़ा अच्छा, मैंने परसों एक मैसेज देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग ना कहते हुए उन्होंने कहा कि एक दूसरे से दूरी रखना है। तो एवरीबडी व्हेन दे वॉक दे स्टार्ट यूजिंग अम्ब्रेला, छाता लेके चलते हैं। 2 उसके फायदे हैं, एक तो धूप से, बारिश से और लोगों से भी। 2 छाते जब इकट्ठे आते हैं तो अपने आप डिस्टेंस पैदा होता है। तो इसके बारे में बातें कम लेकिन करने का है। तो किस तरह से हम अपने आप का देखभाल कर सकते हैं वो पहले देखना है। लेट मी टेल यू दैट वायरस किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा देखभाल करना हमारा काम है, हमें देखभाल करना ही चाहिए। तो आप सब लोग अपना अपना देखभाल करना बहुत आवश्यक है। ये पहली चीज़ हुई। लेकिन दूसरी चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर बाय चांस किसी को अफेक्ट हुआ या हमें पता चला है या कोई क्योर हो गया है तो उसके प्रति भेदभाव ना करना या लोगों को कहना कि इसके प्रति भेदभाव करने की ज़रूरी नहीं है, ये हमें लोगों को बताना या इसके प्रति हमने खुद ने भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। When this lockdown started on 23rd, we were hoping कि मार्च में ठीक हो जाएगा, अप्रैल में ठीक हो जाएगा कुछ स्थिति और सब लोग वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए। जब एवरीबडी इज़ एट होम और शेल्टर होम टीम इज़ एक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका घर नहीं है, जो सड़क पे थे, ऐसे लोग अचानक शेल्टर होम में आ गए। तो शेल्टर होम इज़ रिस्पॉन्डिंग टू दिस वेरी नाइसली एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ मोर देन 350 पीपल। ना वहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल खाना खिलाना ये काम नहीं है, केवल उनको रहने के लिए घर देना ये काम नहीं है, लेकिन कई सारे इश्यूज जो लोगों के आपसी संबंधों के बारे में हैं, लोगों की चिंता के बारे में है। घर में कोई रह गया है, कोई यहाँ पर है तो वो पहुँच नहीं पा रहे, उसको लेके है, जॉब गया है उसको लेके है, माइग्रेंट लेबर के कई सारे इश्यूज़ है, तो उनको डील करने का कई सारे चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो वो देखते हुए 1-2 चीज़ें जो हम लोग सोचे कि वी आर सीरियसली थिंकिंग कि ये ऑनलाइन इंटर्नशिप का मतलब जो अभी बता रहे हैं तो उसको कैसे किया जा सकता है। तो वी जस्ट थॉट कि आफ्टर सीइंग ऑल दिस इश्यूज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन आवर शेल्टर होम, जो भी वहाँ पर हो रहा है उसको देखते हुए हमने CSRD का रिस्पांस टू कोविड-19 क्या है इसके बारे में हमने कुछ नोट तैयार किए कि हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए कि एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ अ प्रोफेशन विच इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी, तो व्हाट शुड बी द आवर रिस्पांस। तो उसके रिस्पांस 3-4 रिस्पांस हमने तय किए हैं। पहली बात तो शेल्टर होम है जो कि लोगों को टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा उनके लाइवलीहुड्स को लेके कई सारी चीज़ें वहाँ पर करने का प्लान है। काउंसलिंग वहाँ पर दिया जाता है, लोगों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई सारे प्रिवेंटिव चीज़ें वहाँ पर सेशन दिए जाते हैं, ग्रुप काउंसलिंग हो रहा है, बच्चों के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, क्योंकि 300-350 लोगों को इकट्ठा रखना और संभालना ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारा वहाँ पर हो रहा है। तो उसके साथ साथ ये करते समय और एक चीज़ कि वी प्लान टू एस्टैब्लिश्ड रिस्पांस सेल एट CSRD। ये रिस्पांस सेल में क्या होगा, तो इसमें कुछ रिसोर्सेस हम तैयार करेंगे,
दूसरा, वी प्लान टू हैव द ऑनलाइन इमोशनल सपोर्ट टू द पीपल. वी आर गोइंग टू गेट द डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन्स. वी आर गोइंग टू अनाउंस. क्योंकि एक चीज़ मेरे समझ में, जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें कही कि सोशल वर्क को आना चाहिए, सोशल वर्क को करना चाहिए. अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो कौन है? डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पुलिस है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं. सोशल वर्कर्स बाहर नहीं निकल रहे. ये अच्छी खबर नहीं है. सोशल वर्कर्स अगर समाज के लिए काम करते हैं तो उनको काम करने के लिए आना चाहिए. यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड नंबर ऑफ टाइम्स कि NSS वॉलेंटियर्स, NCC वॉलेंटियर्स, प्लीज कम एंड हेल्प, रजिस्टर्ड योर सेल्फ. पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. यंग पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. सोशल वर्कर के आगे नहीं आ रहे. ये अच्छी बात नहीं है. अगर हम आपको व्यावसायिक समझते हैं, हमारी देखभाल करना हमारा पहला काम है, लेकिन देखभाल करने के साथ साथ जितना हम कर सकते हैं उनके लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो फिर ये प्रोफेशन का वैसे भी नाम नहीं है, और हम ऐसे मौके पर अगर आगे नहीं आ जाएंगे तो हम हिपोक्रेट या केवल बहाना करने वाले और बड़ा आवाज़ करने वाले लेकिन कृति ना करने वाले व्यावसायिक होंगे. ये सिद्ध हो जाएगा समाज में. अमेरिका, इटली, स्पेन, इस सारे कंट्रीज़ में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में सोशल वर्कर्स एक्टिवली कमिंग फॉरवर्ड. इंडिया में केरला छोड़ के बाकी जगह सोशल वर्कर्स बाहर नहीं निकल रहे. सोशल वर्कर्स ने बाहर आना चाहिए. यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुलेआम घूमो, लेकिन व्हेन देयर इज़ कॉल, रिपीटेडली पुलिस इज आस्किंग, हमें कॉल मिला है कि हमें वॉलेंटियर्स चाहिए, हमें मदद के लिए, हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनकी देखभाल करने के लिए भी कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वॉलेंटियर्स नहीं आ रहे सामने. मतलब ये बड़ी दुख की बात है. तो ऐसे समय में हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. उसके लिए बाहर आना मतलब चुपचाप बैठने के बजाय हम सोशल मीडिया के द्वारा हो, हेल्पलाइन के द्वारा हो, या एक्टिवली जहां मदद की ज़रूरत हो अपनी देखभाल लेते हुए वॉलेंटियरिंग करने के लिए सामने आने के लिए तैयार होना चाहिए. ये जो हेल्पलाइन है इसी को हम प्लान कर रहे हैं कि इंटर्नशिप के साथ जोड़ना. इंटर्नशिप के साथ जोड़ना मतलब when we receive calls we will direct those calls to the people, and everybody, all those students who want to work on this helpline, they can join and register. तो 2 दिन के अंदर ये हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी. उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और जितने लोग इसमें ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आगे आना चाहते वॉलेंटरली या इंटर्नशिप के तहत, उन्होंने इसमें रजिस्टर. आपको बाहर निकलना मतलब सड़क पर नहीं जाना है. आपको आपके मोबाइल के द्वारा या आपके जो भी साधन है, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा लोगों की इमोशनल बैलेंसिंग रखने के लिए, कई सारे लोग हैं डिस्टर्ब है, उनको मदद करने के लिए जितना आप आसान कॉल ले सकते हैं उतने आपको लेने हैं. उसके बाद वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विथ नंबर ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स. एटलीस्ट वी हैव 5 नाउ, कि उनके पास अगर ऐसा कोई कॉल आया तो वी विल बी डाइवर्टिंग दैट कॉल टू द प्रोफेशनल, जो कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग करे. जहाँ पर हम नहीं कर सकते उसमें अननेसेसरी नहीं करना है. इसके क्लियर गाइडलाइंस हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके पहले अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करना है कि आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करना है या आपको वॉलेंटियरिंग करना है. दोनों के लिए आपको रजिस्टर करना है और मदद के लिए तैयार होना है. वी हैव आवर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री. जहाँ भी है वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. तो जिसके द्वारा हम कई सारे लोगों को खास करके मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मदद कर पाएंगे. तो ये एक हमारा रिस्पांस, जिसको हम कहेंगे कि ऑनलाइन इमोशनल सपोर्ट का, ये एक रिस्पांस CSRD का दूसरा हम लोग प्लान कर रहे हैं. और एक चीज़ की ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर काउंसलिंग, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सब का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा. विल इशू सर्टिफिकेट आल्सो. उनको कुछ कंपलसरी कुछ आवर्स के सेशंस अटेंड करने हैं. काउंसलर के द्वारा जो सेशन दिए जाएंगे वो अटेंड करने हैं, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल दिस केसेस.
इसमें भी ये है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे छोटे छोटे इश्यूज़ है जो कि इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे यूपी वापस जाना है, कौन से किस में मैं फॉर्म भरूँ, कहाँ से मैं मदद लूँ, किसको कॉल करूँ, ऐसे कुछ कॉल आए तो उसमें आप मदद कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई इमोशनली डिस्टर्ब है, सच में उनको कोई सुसाइडल टेंडेंसी है, ऐसी केस आप नहीं हैंडल कर सकते, तो तुरंत वो प्रोफेशनल काउंसलर के पास रेफ़र करना है या बताना है। तो ये सारा सिस्टम कैसा काम करेगा, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट एंड विद इन नेक्स्ट 2-3 days वी विल इनॉग्रेट इट एंड विल पुट दिस रिस्पॉन्स ऑन रोलिंग वेरी सुन। My dear students, I know that after listening to all this, I hope you will become little bit comfortable or disturbed, I don't know. But I am expecting that you become comfortable. Wherever you are, जहाँ भी आप हो, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, आपके जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए, अननेसेसरी कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ज़रूरत नहीं है तब बाहर नहीं निकलना है, या अनावश्यक वेंचरिंग आउट नहीं करना है। लोगों की मदद करना है, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, और ख़ास करके जो मैंने कई चीज़ें बताई जिसमें कि इस बीमारी के विषाणु की वजह से जो भेदभाव, स्टिग्मा, प्रेजुडिसेस अटैच्ड हुए हैं, उसको कम करने के लिए आप लोगों की सहायता करें। और सही मायने में हम लोग सोशल वर्कर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, सही इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचाने के लिए हम सबको मदद करनी है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी स्थिति ठीक होके हम सब फिर से मिलेंगे क्लासरूम में। लेकिन अभी तक जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं 2-3 चीज़ें दोहराता हूं केवल। पहली चीज़ ये है कि सेकेंड ईयर के लिए एग्ज़ाम 1 से 31 जुलाई को होगी। उसके बारे में डिटेल्स यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आने के बाद आप सबको बताए जाएंगे। दूसरी बात, जो वाइवा आपका होना बाकी है वो ऑनलाइन वाइवा यूनिवर्सिटी ने और यूजीसी ने पहले ही अलाउड किया है। उसको अगर अभी भी लेना है तो उसके बारे में डिटेल्स आपको आने वाले कुछ दिनों में बताया जाएगा कि वाइवा कब होगा और कैसे होगा, आपका नंबर कब है, आपको पूर्व सूचना दी जाएगी, आपको तैयार किया जाएगा। और उसके बाद में अलग अलग जो माध्यम हैं, खास करके ऑनलाइन वाइवा लेने के, तो उसके द्वारा पैनल गठित किया जाएगा, उसके द्वारा हम वाइवा लेंगे। तीसरी बात यह है कि हम लोग जो CSRD सोशल वर्क इंस्टीट्यूट का रिस्पांस टू कोविड-19 शुरू करने जा रहे हैं और जो चल रहा है अभी, उसमें दोनों तरफ का है। एक जो शेल्टर होम जैसी एक्टिविटी चल रही है, लोगों को वहाँ पर सेवा सुविधा देने वाली एक बात है, तो उसमें भी अगर किसी को वॉलंटियरिंग करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप नाम दे सकते हैं और आ सकते हैं। दूसरी बात है कि ऑनलाइन इमोशनल सपोर्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं हेल्पलाइन, तो उसके लिए जितने सारे वॉलंटियर्स काम करना चाहते हैं उन्होंने रजिस्टर करना है। तो इसके डिटेल्स फिर आपको लिंक दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दिया जाएगा। तो आपको रजिस्टर करना है और कैसे करना है इसके बारे में ट्रेनिंग होगा, जिसमें जो भी नाम देंगे उन सभी को पार्टिसिपेट करना है। एक बार ट्रेनिंग होने के बाद यू विल बिकम द एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि अभी इस स्थिति में आपको एक्टिव एंगेजमेंट के लिए एक अच्छा मौका है। Thank you very much for listening to me. I hope I have clarified some of the things. Now the situation is, as I already said, that uncertain. So this is many things I have said hypothetically कि ऐसे हो सकता है, ऐसे, क्योंकि स्थिति कैसी है, क्या होगा, यूनिवर्सिटी का क्या सर्कुलर आएगा उसके ऊपर निर्भर है। तब तक आप सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।